ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣਾ। ਸੁ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਣਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਚਉਪਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਾਉ। ਪਾਪ ਮਲੋਆ ਮਲ ਮਲ ਧੋਆ। ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਉਦੇਸਾ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਦੇ ਉਪਦੇਸਾ। ਮਾਨ ਨ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਜੈ।
ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ। ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮਿਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡਿਠਾ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮਿਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡਿਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 611 612 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਪਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ
कि भरावा एक पिता एक सके हम बारिक, क्योंकि सतगुरु की बाणी सर्वव्यापी है। भावें कुछ संप्रदाय महापुरुषों ने उठाणका भी दिती है कि ये सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਠਾਣਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੂਸਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ एक सके हम मुबारक। और जे उठाणका ये जी मन भी लईए, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने तो सुखमणी साहिब दे विच भी पावन बचन कहे ने। और वो अष्टपदी का पद आप रोज़ ही पढ़ने अरदास तो पहला कि तू ठाकर तू पए अरदास। उत्थे पावन बचन होंदा कि तू मात पिता हम बारक तेरे, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ तेरे बच्चे हैं, तू साडा माता पिता है। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। इस करके है मेरे मित्र, तू मेरा भरा भी है, मित्र भी, मेरी गल तो सुन। जियो हमारा बन बन जासे, जियो हमारा साडा ए जियो, साडी जिंद तेरे तो बलहार जाती है। कह दिनी हर दर्शन देहो दिखाई, उस हरे परमात्मा के दर्शन तू किते ने ते मेरे ते कृपा करो, दर्शन मैनू भी करा। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਤੇ ਦਿਸਣ ਨਾ, ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਲੋਚਨ। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨਾ ਜੇ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਆ ਜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਠਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਿਆ ਦੇਖ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
तो फिर मेरे ते कृपा कर। जेड़े रब दियां रोज़ गल्लां मैनूं सुनाउणा है, फिर उस रब दे मैनूं भी दर्शन करा दे। जां तो गल्लां ना सुनाया कर, जां फिर दर्शन करा, क्योंकि सुन के अंदर एक तड़फ पैदा होगी, प्यास पैदा होगी। और सतगुरु जी ने पावन वचन बाणी दे विच कहे ने कि असल विच दर्शन हो जाने तो बड़ी वड्डी बख्शिश है, पर दर्शनां दी प्यास लग जे ना तो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते जिन्हों लग जे, मैं उनके चरणों के विच नमस्कार करना, उनके चरणों तो कुर्बान जाना। और गुरु साहब का पावन वचन आप सुखमनी साहब के विच रोज़ पढ़ते हैं कि जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। हुण तो भगत नामदेव जी कहते हैं, फिर चल तेरी भी गल कर देंगे। भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है कि भलके उठ त्रिलोचन नामदेव दर्शन नूं आवे। उन्हें पावन वचन ने कि वो रोज़ आते हैं भगत नामदेव के दर्शन करते हैं। उत्थे कहते जो भगत नामदेव जी कहते हैं कि रब जी मेरे मित्र नूं भी दर्शन दिओ, तो अगों आवाज़ आती कि रब केवल मित्रता करके तो जां केवल रुपये पैसे करके नहीं मिलता, क्योंकि त्रिलोचन ये चाहता कि मैं भेटा दिया, रुपये पैसे दिया। ये रुपये पैसे नाल नहीं मिलता। और किते ना किते साडी तो अज हर एक की आदत ही बन गई है कि भेटा दे दो, पाठ तुसीं कर लो, फल सानूं मिल जे। पर उत्थे भाई साहब जी कहते हैं रब भगत नामदेव जी नूं वेख के हसदा भी है, जिते भगत नामदेव जी आप कहते हैं कि रब मेरे नाल गल्लां भी करता है। नामा देख नारायण हसै, मैनूं वेख के हसदा भी किन्ना भुला। तो जदों भगत नामदेव जी ने जोदड़ी की कि वह बार बार चाहता तुहाडे दर्शन करना चाहता है, तो कहते रब जी ने फिर बोल के कहा कि नामे उनके भाग ते नहीं सन, पर क्योंकि जाका कहे आ दरगाह चलै, जिंदा कहा होया रब दे घर भी चलता होवे, उनकी रब भी कदे नहीं मोड़ता। उत्थे भाई साहब ने वो उदाहरण दिते कि भगत नामदेव जी करके भगत त्रिलोचन जी नूं दर्शन हुए। और इत्थे गुरु साहब जी समझाते हैं बिल्कुल उस तरह जिहड़ा आप जुड़िया हुआ है, उस जुड़े हुए गुरसिख दे कोल बेनती कर, अरदास करके जे तू मिल गया तो कृपा कर मैनू हर दर्शन देहो दिखाई, उस परमात्मा के दर्शन कराओ, तो मेरी जिंद मेरे जान सारा कुछ तुहाडे उत्तों कुर्बान है। हुण सतगुरु जी ने कृपा की है, जिथे पावन बचन धन गुरु अर्जन देव जी दे ने कि कोई जन हर्षों देवै जोर, भी कोई जुड़िया होया कोई भी होए, चरण गहूँ बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। उथे दीजै प्राण अकोर, तो इत्थे शब्द वरते जियो हमारा बल बल जासी, साडी जिंद उहदे तो बलहार जाती है, कोई भी होवे मिलावे। और सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने उस जुड़े हुए गुरसिख नूं जदों अरदास बेनती जग्यासू करता है, उत्थे सतगुरु जी कहते हैं फिर चरण फड़ देने चाहिए ने, जे जुड़िया होया होवे, होया जुड़िया होया होए गुरु का सिख। और सतगुरु जी कहते हैं जो दिसै गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागा पाओ जियो। देखो गुरु ग्रंथ साहब ने भावें शब्द जपण वाले वास्ते बड़े वरते ने, गुरसिख शब्द वरत्या है, भगत शब्द वरत्या है, साध शब्द वरत्या है, संत शब्द वरत्या, किते साधु शब्द वरत्या है जपण वाले लिए। हुण देखो साधु भी बड़े बन गए, संत भी बड़े बन गए, क्योंकि गुरु साहब जी के पावन उन्होंने पंक्तियों को आधार बना के कि गुरु साहब जी कहते हैं संत बड़े महान होंगे ने, असी संत बन गए। सानू जो घर दे विच भी कोई नहीं सी पुछदा, हुण संत बन गए, हुण दुनिया पैरों च नमस्कार करती है, क्योंकि अपने आप बन गए ना। खैर सतगुरु जी कृपा करते हैं, शब्द बड़े वरते सारे सत्कारयोग ने।
पर उत्थे एक पावन शब्द वरते, जे कोई गुरु का सिख हो जाए तो सब तो वड्डे भाग गुरसिखा के। गुरु साहब जी कहते गुरु के सिख नालों वड्डा तो कोई हो ही नहीं सकता। सब तो वड्डे भाग ने उन्होंने गुरसिखा दे, जिन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागो पाऊँ, जो ये सिक्खी की दात किसी को मिल जाए सही। हुण सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, कहते धन धन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहते आ। भगत जना के भी वड्डे भाग ने, जिहड़े मुख दे नाल उस परमेश्वर नूं जपदे ने, सिमरदे ने। कहते धन धन भाग तिना संत जना, जो हर नामा हर जस कहते आ। वो संत जन भी वड्डे भागां वाले ने, जिहड़े हरि जस नूं कहिंदे ने, कह के सुणाउंदे ने। माड़ा किसी नूं नहीं कहा, वो भी धन धन दे योग ने। और सतगुरु जी कहते हैं धन धन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ। असल में ये शब्द सारे गुरसिखां लई ही ने। एक वो जिहड़े सुणाउण वाले ने उन्होंने संत जन कह दिता, एक वो जिहड़े जपण वाले ने उन्होंने भगत जन कह दिता, एक वो ने जिहड़े कीर्तन करके सुणाउंदे ने उन्होंने साध शब्द वरता। कि धन धन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ। जिहड़े कीर्तन नूं सुन के आप गुण उन्हां दे कोल है, कीर्तन दा सुन के होरां नूं गुण वंडदे ने, सुना के होरां नूं गुण वंडदे ने। उन्हां साध जनां दे भाग वड्डे ने। और गुरु साहब जी कहते ने धन धन भाग गुरमुखा, गुरमुख शब्द वरतदे ने। धन धन दे योग ने, वड्डे भाग ने गुरमुखां दे भी। और गुरमुख जिहड़े गुरु दे सड़मुख हो जाण, गुरु दे भाणे विच आ जाण। कहते धन धन भाग तिना गुरमुखा, गुर सिख लै मन जिणते आ। जिहड़े गुरु की सिक्ख्या लैके अपने मन को जित लेंदे ने, वड्डे भाग ने। और अखीर ते जिहड़ा पावन शब्द वरतिया, कहते सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के। पर अपने आप दे विच बड़े हुए संत, उन्होंने लगता कि संत सब तो वड्डा है। पर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कृपा की, सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। धन धन दे योग सारे ने, पर जिहड़ा सिख बन गया सब तो वड्डे भाग उन्हां दे ने। और अज सतगुरु जी ने कृपा की, उस सिख के चरणों के विच अरदास बेनती करते हैं कि तू मेरा भरा गुरभरा भाई भी है, साडा पिता भी परमेश्वर एक है, गुरु भी एक है। तो भाई तू गुरु वाला बनया है, तू गुरु की सिक्खी की दात लई है, तो कृपा कर एक को ढंग एक को तरीका दस कि मैनू भी एक गुरसिक्खी की दात मिले, तो केवल कली खंडे बाटे की पौड़ी ना लवां। इस सिक्खी को कमाउणा किवें है, वो साईं किवें रिझे, उनके दर्शन किवें होण। मैं तेरे को अरदास बेनती करन आया कि तू मिलिया है, मैनू भी मिला। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं कि ये अंदर किसी के सिक्खे की दात होवे सही। ये सिक्खे की दात तो मेरे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की वो फुलवाड़ी है, फुलों की तरह। बस फुल खिड़िया होया होवे, फुल दे विच सुगंध होवे, तो फुल नूं कदे किसी नूं कोई चिट्ठी थोड़ी पाउणी पैंदी है कि पुੱਤ तुसीं मेरे कोल आओ, मेरी सवप्पन नूं देखो, मेरी सुगंध देखो। फुल खिड़िया होवे ते भंवरे नूं चिट्ठी नहीं पाउणी पैंदी, भंवरे अपने आप ही आ जाते हैं। अंदर सिੱਖੀ होवे, अंदर गुण होवे, किसी नूं आवाज़ां नहीं मारनियां पैंदियां। जग्यासू जिहड़े ने फिर अपने आप ही आउंदे ने कि तू मेरा गुर भाई है, तू भी सिख है, मैं भी सिख हाँ। फिर कृपा कर ये जिहड़ी बख्शिश तेरे ते हुई है, मेरे ते भी होवे। हुण सतगुरु जी ने उत्थे कृपा की कि इवें दी जिहड़ी जग्यासा है ना, इवें दा जग्यासू गुरु साहब जी कहते है कोई करोड़ा चक्कर दा ही।
देखो अपने आप सारे अपने आप को कहण नूं सिख आप सारे कही जाते हैं, बेशक सिख होइए, पर गुरु के कोलों मंगण वास्ते होर बड़ा कुछ आउंदे, पर एक दात जिहड़े जग्यासू बन के अज गुरु साहब जी मंगते हैं कि दर्शन दे दो, ये कोई करोड़ों च इक दा मंगता है, जिन्हों सतगुरु कहते हैं हैण विरले नाही घड़े फैल फकड़ संसार। और ये जड़ा कोई विरला मंग लवे ना, नहीं तो सतगुरु जी ने कृपा की बहुते इत्थे दर्शन लैण वास्ते नहीं आते, बहुते जड़े ने गुणी ज्ञानी बन के अपना ज्ञान वंडण वास्ते आते हैं, अपना ज्ञान गुरु का नहीं अपना। गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने कि नहीं तो बहुते ऐसे ने कि ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, दूजिया को उपदेश देने वाले बड़े ने, पर इवें दा कोई विरला है जिंदे अंदर इवें दी जिग्यासा पैदा होए कि मैनू भी दर्शन दिखा दो, मेरा जिंद जियो तेरे तो कुर्बान जाए। उत्थे सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, फिर इवें दे उपदेश जिहड़े केवल लोकां नूं देने ने, वो तो जिन्ने मर्जी दे जो, वो तो फिर एक धंधा ही है ना। सतगुरु कहते हैं ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, यह जग सगलो धंधा एक दी गल नहीं, सारे संसार दे धंधा है। धंधा ही बना लिया कि दूजे को उपदेश देना, आप करना नहीं। पर गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने कि जिन्होंने दर्शनों की प्यास लगती उन्होंने तो कुर्बान, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बन बन जासा। हुण वो जग्यासू आके अरदास बेनती करता है कि गुरसिख वीर भरा, सतगुरु का पावन बचन है गुणवंती, उहदे च सिख अरदास बेनती करता है कि जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। ते पैरे लग के चरणी लग के कहना की है, कहते आखा बिरथा जे के गुर सज्जण देह मिलाए जियो। सुन मेता जियो हमारा बल बल जासी, कहते नहीं हर दर्शन दे हो दिखाई। उत्थे कहते ने कि आखा बिरथा जी की उस सज्जन सिख को अपने अंदर की बिरथा कवा कि सचमुच मेरे अंदर भी दर्शनों की प्यास लग गई है, गुर सज्जन दे मिलाई जियो। उस सज्जन गुरु नाल मिलाई दिओ, कोई ढंग ही दस दिओ, कोई जुगत ही दस दिओ। हुण उत्थे कहते ने वो अरदास बेनती करके कहता है कि सोए दस उपदेसड़ा मेरा मन अणत न का हो जाए जियो। कि गुरसिख भरावा मैनू भी वो उपदेश दस जिहड़ा तू कमाया है, कि जिहड़े उपदेश नूं कमा के ये मन होर पासे नूं किते जावे ना, इस मन दे विच होर तरह का कोई फुरना कदे आवे ना। हुण उत्थे कहते हैं कि जे तू ये कृपा कर दे, वो दर्शन दिखा दे कि मन किसे पासे ना जावे, तो मैं तो तन के नाल नाल मन भी तेरे चरणा च अर्पण कर दिया कि ये मन तै को डेवसा मैं मार्ग देहु बताए जियो। और देखो तन देना, भावें तन देना भी बड़ी औखी गल है, तन दिता जा सकता है, पर जिहड़ा मन है मन देना बहुत ही औखा है। तन ते एक बार हिम्मत आ जाए कि शरीर भावें सिर अड हो जाए, वड्डिया जाए, कोई गल नहीं, पर जिहड़ा मन है मन देना बड़ी औखी गल है। और सतगुरु जी कृपा की सानू बड़िया उदाहरण इतिहास में भी मिलती हैं। जदों धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी संगलादीप गए, शिवनाम राजे नूं मिले, और भावें शिवनाम राजे ने कई तरह की परख भी की, क्योंकि ये इतिहास की साखी आप जी जानते हो, इहदे विचों जिहड़ा तत्त लैना है कि सतगुरु जी नूं परखण तो बाद वो भेटा दिंदा है। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते शिवनाम सचमुच अज भेटा तेरे तो लैके जानी है। ये कहने कि धन गुरु नानक साहब जी ने उत्थे भेटा मंग के नहीं, पर भेटा किहड़ी सी
शिव नाम जिहड़ा है वो हीरे मोती थाली च पा के लिया। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते ने शिव नाम ये नहीं, भेटा वो दे जिहड़ी तेरी अपनी है। और भावें बड़ा उन्हें यतन किए कि ये अपने खजाने चो लिया जी, मेरे अपने ने। और गुरु साहब जी समझाते हैं तेरे तो पहला कहते सन, क्योंकि राजा प्यो से पहलों प्यो तो उदों पहलों दादे ने, जिदन तू मर गया उदन कहते होने ने। ये जेड़े तेरे अपने है ही नहीं, ये नहीं जिहड़ी भेटा वो दे जिहड़ी अपनी है। उत्थे वार वार उन्हें किए यतन, कदे हाथी कदे घोड़े, इतों तक कह दिता सतगुरु जी फिर मेरा तो केवल शरीर ही है, ये तन ही है, तन ही तुहाडे चरणों च अर्पण करदे आ, ये भेटा स्वीकार कर लो। और सतगुरु जी कहते भाई तन भी तेरा नहीं, क्योंकि तन लैके रब तो जरूर संसार में आया से, पर जिदन जाना तन जिथे रह जाना है। उस तन नूं गल वखरी, कोई साड़े कोई दफड़ाए कोई पानी च सुटे। जे तन तेरा हुंदा तो तन दे नाल जाना सी। भेटा वो दे जिहड़ी तेरी अपनी है। जदों नहीं समझ लगी पैरां च दोने हत्थ दे नाल चरण पड़े, पैरां च रखिया सिर कि सतगुरु जी मत छूटी है, कृपा करके समझा दो कि फिर मेरा है की। बस गुरु साहब जी कहते आ ही तेरा जेड़ा उदों तू लाई ना, आ मेरा आ मेरा आ मैं, ये जिहड़ी मैं मेरी है, ये जिहड़ा मन है बस ये गुरु नूं दे दे। और सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिन्हें मन वेच दिता उन्होंने होर कुछ मंगण की लोड़ रहिंदी होई नहीं। सतगुरु कहते हैं सेवक के कारज आप ही रस करता है, पर असीं मन वेचते जरूर हाँ, जिथे जिथे लोड़ पैंदी फिर कब्जा अपने रखने। कह देने कि तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निए पाइए, कि सतगुरु जी मन भी तुहाडा, तन भी तुहाडा, धन भी तुहाडा, पर हथ ना लाओ, क्योंकि मन दिता किथे जाता है। और सतगुरु जी कृपा करते ने, कोई चीज़ जे हुण बचन कह दिता कि मन बेचे सतगुरु के पास। देखो उदाहरण आप अपने आम घर परिवार जो समाज चों लैनी होंदी है। साडे कोल कोई चीज़ है, कोई गड्डी होगी, गड्डी नूं वेच दईए, अगले दे नां ते होगी, तो फिर भी उहदे ते हक रखिए कि मेरी गड्डी कोई ध्यान नाल चलाई, और अगों जवाब की मिलेगा जी कि पैसे दिते ना भी अपने करा ली, हजे भी तेरी है। पर इत्थे असीं नहीं मनण लई तैयार, उत्थे तो मन जाके गड्डी भी वेचती, तेरी मर्जी, चल तू नहीं चलाउणी तो ठोक किसे च। पर इत्थे असीं कहने कि नहीं मन सी, असीं अपनी मन के मर्जी के मुताबिक थोड़ा जिहा तो चल सकते। खंडे बाटे की पौड़ लई जिदन गुरु साहब के सामने सिर झुकाया से, इहदा मतलब कि तन नहीं अज तो मन भी गुरु का सी, पर मर्जी फिर भी मन की चलन दी। जिहड़ी चीज़ वेचदी उहदे ते अपना हक कोई नहीं रहिंदा, भाई मन ते हक तू अपना क्यों रखना है, क्योंकि मन तो बड़ा कुछ चाहता है, और वो कुछ चाहता है जिहड़ा कुछ गुरु के सिख ने कदे करना ही नहीं। भट्ट चांद जी ने एक पावन बचन किया है कि हर किसी के अंदर की अवस्था ऐसी है, मन तो हर किसी का चाहता है कि मन लोचे बुराइयां, मन तो बुरे काम लिए बड़ी छेती शेर बनता है। मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ये मन होड़िए। और फिर बेनती करते ये सतगुरु जी की बाणी नहीं, भट्ट चांद जी ने लिखी हुई अपनी उन्होंने कवित है। मन चाहता है कि बुरे काम करा, पर गुरु के शब्द के राही इस मन को जिन्हें रोक लिया, तो रोकेगा वही जिन्हें मन गुरु के कोल वेच दिता है। रोकेगा मन तो चाहता है। और सतगुरु जी कृपा करते हैं अज कि ये मन तैकू डेवस, मैं मार्ग देहो बताए जियो। गुरसिख भरा नूं कहते हैं कि ये मन भी तेनों दे दिता,
पर वो मार्ग वो रस्ता दस जेड़े रस्ते ते चल के तू इत्थों तक पहुँचे है। हुण इत्थों तक सतगुरु जी ने कृपा की, वो जगियासू फिर जो बार बार तरले लेंदा कि सिखा दस, भरावा दस, बड़ी दूरों चल के आए। पूरे सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि हो दूरों आया चल के, मैं तके तो शरणाए जियो, मैं आशा रखे चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। तो सबो दुख दे विच सब तो वड्डा दुख है विछोड़ा, विछड़ जाना। कृपा कर मैनू भी मिला दे, बड़ी दूर तो चल के आया। और जो गुरु साहब तो पूछे कि किन्नी को दूर तो, आप तो अंदाजे लावांगे तो 50 मील तो चल के आया होना, 100-200 मील तो चल के आया होना। पर गुरु साहब जी कहते हैं वो जगियासू कहते हैं कि पता ही नहीं किन्ने को जन्म हो गए ने, बड़ी दूर तो चल के आए। उत्थे पावन बचन कहे ने कि केते रुख बिरखा बिचिने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए, हो आया दूरों चल के एनी दूरों। कहते कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म राज मेन कुरंगा। हुण बड़े दूर तो चल के आया हाँ, ते आस लैके ये आया कि मैनू दर्शन करा दे, मैनू मिला दे। सुन मीता जियो हमारा बनबल जासी, हर दर्शन देहू दिखाई, उहदे दर्शन दिखा। सुन मेता धूरे को बल जाई, ते केवल तेरे चरणा तो नहीं, तेरे चरणा की धूड़ तो भी कुर्बान जावांगा, बलिहार जावांगा जे दर्शन करा दे। यह मन तेरा भाई, फिर कहते ने यह मन भी भरावा अज तो तेरा है। तो मन तेरा मतलब जो तू कहेगा अज तो बाद उस तरह करांगा। रहाओ पाव मनोवा मन मन धोवा, यह मन तै कू देसा। हुण देखो मन गुरु साहब ने 3 वारी शब्द वरते है, यह मन तेरा भाई। इत्थे कहते ने यह मन तै कू देसा, ये मन भी तेनू दे देगा, तो कहते नहीं देना है। सुन मेता हो तेरी शरणाई आया, प्रभु मिलियो दे उपदेसा। ऐ मित्र भरा गुरसिख वीर तेरी शरण विच आया है। सुन मेता हो तेरी शरणाई आया, प्रभु मिलियो दे उपदेसा। वो उपदेश दो कि जिहदे नाल प्रभु मिल जाए। हुण अगों वो गुरसिख फिर बोल के जवाब दिता है जिहड़ा मिलिया होया है। उत्थे सतगुरु जी ने पावन बचन कहे, जिहड़ा गुणवंती शब्द पढ़ रहे सन, उत्थे गुरसिख जवाब दिता है कि इत मार्ग चले भाईड़ा, गुर कहे सुकार कमाए जियो। बस जो उन्होंने मिलना तो कोई तरीका जो गुरु कहता है, जो गुरु कहे सो भला कर मन है। हिकमत हुक्म चकाई है, बस अज तो हुक्म करना छड्ड दे, हुक्म जिहड़ा मनना शुरू कर दे। जो गुरु कहता उन्होंने मन लै। इत्थे गुरु साहब जी कृपा करते हैं कि मान न कीजै शरण परिजै, करे सो भला बनाइए। वो गुरसिखों को हुण जवाब दे रहे हैं कि भरावा जे मिलना है ना, फिर ये काम करे कि नितनेम करदे, बंदगी करदे, सिमरन करदे, सेवा करदे, कदे भुल के भी मान न करी कि मैं इन्नी सेवा की। मान न कीजै शरण परिजै, केवल शरण दे विच आ जा। ते फिर सो करै सो भला मनाइए, जो गुरु कर दवे उन्होंने भला करके मन ली। हुणे गल्लां तो सारियां कह देनियां तो सौखियां ने, सुन लैनियां भी सौखियां ने, पर जदों समा पवे इन्हां नूं कमाउणा उन्ना ही औखा है जी। फिर वड्डे वड्डे कथावाचक, वड्डे वड्डे स्रोते, उत्थे परख हुंदी कि अज की हो गया भाई। कथा सुनदियां नूं तो 50 साल हो गए, सुणाउंदियां नूं भी 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, पर अज जदों कमाउणा सी, कमाउण दे समय कित्थे गया।
ਹੁਣ सतगुरु जी कृपा करते हैं कि जो गुरु करे, प्रभु करे, परमेश्वर करे, उन्होंने भला कर बनना, मान ना करी। बाबा फरीद जी का एक पावन बचन है, वो एक दब की उदाहरण देते हैं, और दब आप बजुर्गों ने देखी है कि जो कच्चे रस्ते होंगे सन, किसी ने दब वड्डी, किसी ने उस दब को कुटिया, तो कुटन तो बाद वो दब को फिर रस्तियां दे विच खिलार देंदे सन कि सुक जे। हुण जदों वो दब रस्ते ते खिलरी होवे, उन्हें तो डंगर भी लंघदे ने, गड्डे भी लंघदे ने, बंदे भी लंघदे ने। ये कहने कि पैरों दे विच ऐन चंगी तरह लताड़ी जाती है, पर बाबा फरीद जी कहते हैं पैरों के थल्ले ते आ गई दब। पर देखो पहुंची साईं के घर विच कि मुसलमान वीर जदों मसीत विच पढ़ते सन नवाज, अज समा भावें चलो होर है, होर चीज़ां विछाई जांदियां होणगीआं, पर उदों दब की बनाई हुई वो छिज वो विछाई जाती सी उत्थे। बस कहते जे साईं के दर ते पहुँचना ना, जिवें वो दब पहुँची इवें मान ना करी, भला करके मन ली। उत्थे बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा थियो पवाहे दब, जे साईं लोड़ै सब, एक सीजे ब्याह लताड़िए, ता साईं दे दरवाड़िए। ब्याह कहते हैं पे रस्ते कि जिवें उत्थे लताड़ी गई तो साईं दे दर ते पहुँचेगी। बस तू मान न करी, निमरता विच आ जी, जे साईं दे कर जाना है। मान न कीजै शरण परिजै, करै सुभला मनाइयै, सुण मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, यो दर्शन हर जियो पाइए। ये गुरसिख को उपदेश दे के दस रहा, भरावा गल सुन मीता मेरे मित्र भरा सुन, जियो पिंड सब तन अर्पीजै। ये जिंद, ये पिंड, ये शरीर, ये तन सब दर्थ सारा कुछ ही अपने गुरु के अगे अर्पण कर दे, मेरे अगे ने गुरु के अगे अर्पण कर दे। यो दर्शन हर जी पाइए भरावा, फिर इस तरह दर्शन होंगे। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। हुण गुरु साहब जी कहते उस संत, उस गुरसिख तो उपदेश सुन के भयो अनुग्रह, अंदर आनंद आ गया। तो किवें प्रसाद संतन कै, उन्हें जुड़िया हुए गुरसिख संतां दी भगतां दी संगत करके उन्होंने तो उपदेश सुन के, और सतगुरु जी कृपा करते हैं। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नाम है मीठा। हुण पता लग्या कि हरि परमेश्वर का नाम कितना मीठा है। केवल हुण क्या ही नहीं कि प्रभु तेरा किया मीठा लग गया, सचमुच ही मीठा लगता है। हुण भावें पुत्र की लाश सामने पई होवे तां भी मिठा लगता है, भाणा मिठा लगता है। और साडे कोल उदाहरण बड़िया ने, भाई भिखारी जी वर्गे बड़े गुरु के सिख हुए ने। सतगुरु जी अखेर ते कृपा करते हैं, जन नानक को गुर कृपा धारे, सब कुल निरंजन डिठा। इस तरह गुरसिखा तो जुड़िया होया तो उपदेश सुन के जदों अपना मान छड्ड दिता, जदों अपना तन मन धन सारा कुछ गुरु को अर्पण कर दिता, तो सतगुरु धन गुरु पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि दास नानक ते भी गुरु ने कृपा की। गुरु की कृपा के नाल सब अकुल निरंजन डिठा, डिठा दर्थ वेख्या, दर्शन किते। उस निरंजन परमेश्वर के जिंदे कुल कोई नहीं, सारे दे विच उहदे दर्शन कर ले। सतगुरु जी कृपा करन। होई भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट रसना दे नाल हाजरी लवा के फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮੜਿਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਜਿਹਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ। ਪੰਚ ਦੋਧ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰ ਕੰਟਕ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਕੋਆ ਤਿਤ ਕਰ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਆ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ। तुम मात पिता हम बालिक तेरे।